estimating, costing, valuation, etc. The purposes of estimating, various purposes, types of estimates we have learned in our regarding detail estimate also we have gone through. We have seen all the components of the detail estimate, the supplementary estimate, revised estimate, annual repairs and maintenance. In our last lecture, we have started uh, again. Welcome, friends. In our this discussion, we will be studying about the detail estimates of load bearing and the frame structure. We have seen the long wall and the short wall. We have discussed about this long wall and the short wall method, center line method, the crossing method. About the first two, we first get a revision. We will see the numerical and then the remaining part. Long wall and short wall method. And again, somebody is there, so let him or her come inside. So whenever we go to find out the quantities of various items of work of a building, okay, now you up to today you all must be conversant with what are the various items of work in a building or in a structure. We have seen various examples, that is from the excavation from foundation to finishing of the building, complete in all respect. um, all the items including the civil work, the electrical work and all the painting etc that comes into that. Okay, so those are the items of work. We are related with the civil work, we are not to worry about the electrical and all the maintenance and the decoration etc. So we are really interested in civil work like the excavation, concreting, brickwork, plaster, doors, windows, etc., etc., painting, etc. So there are three methods: long wall and short wall method. The second one is the cross wall method, and the third is the center line method. We are more interested in this long wall, short wall method because it is being adopted and is fit for any type of the building. Maybe frame, maybe load bearing, maybe varying wall thicknesses, maybe of various shape. So in this method, the first and the foremost is the building is the components or walls of the building may be horizontal or vertical. है ना? They should be designated or they should be given the nomenclature as a long and the short wall. है ना? जो हॉरिजॉन्टल है, अभी हमने हमारे इसमें ऐसा डिसाइड किया कि द वॉल्स विच आर वर्टिकल, है ना, दो डायमेंशंस रहते हैं ऑलवेज एवरी रूम. जैसे एक रूम है जिसका डायमेंशन 4 मीटर बाय 3 मीटर हम लिखते हैं, इनर डायमेंशंस ऑफ द रूम आर 4 मीटर by 3 मीटर. इट इंडिकेट्स that the 4 meter is the horizontal length of the room and 3 meter is the vertical length or the width of the room. ऐसा हम बोलते हैं 4/3. तो जो वर्टिकल है, वर्टिकल लेंथ और द वर्टिकल वॉल्स, वी कॉल्ड देम एज द लॉन्ग वॉल्स. ऐसा हमने डिसाइड किया, आप चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन से. और जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स है या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन से जो भी वॉल्स है उसको हमने शॉर्ट वॉल करके बोला है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी मूव फर्दर. हम बाद में क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज मेजर्ड आउट टू आउट एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल आर मेजर्ड इन टू इन. यानी लॉन्ग वॉल में हम क्या करते हैं कि पहले तो जब ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी ड्रॉ द सेंटर लाइन डायग्राम, एंड सेंटर लाइन डायग्राम में जो आउटर वॉल के हाफ वॉल थिकनेस वो ऐड करते हैं और उसके बाद में हमें बाहर की लेंथ मिलती है ऑफ द लॉन्ग वॉल. लॉन्ग वॉल यानी हमने वर्टिकल वॉल को बोला लॉन्ग वॉल, और जो हमारे शॉर्ट वॉल है वो हमने हॉरिजॉन्टल को बोला. क्योंकि लॉन्ग वॉल में हमने आउट टू आउट लिया है तो शॉर्ट वॉल को हम इन टू इन कैसा लेते हैं हम आगे में देखते हैं. द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द डेप्थ. दैट इज बीइंग डन. सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं कि ऑल द सेंटर लाइन लेंथ्स ऑफ द स्ट्रक्चर
ऑफ दैट बिल्डिंग इज बीइंग फाउंड आउट, वो हम इसमें भी निकालते हैं। और सेंटर लाइन को हर आइटम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ और डेप्थ से। लेकिन लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में सेंटर लाइन निकालने के बाद में वी कन्वर्ट इट, हाउ दैट वी विल सी इन द न्यूमेरिकल. This we have seen long wall and short wall and the center line method. We have seen this numerical simple, a rectangular room, wherein we have seen, as I have told, first you have to decide which wall is to be long and which wall is to be short, and then first draw the center line. This we have discussed in our last lecture. And this second, that is other than the rectangular, the some difficult but simple plan we have taken for finding the quantities using the long wall and short method. This is the plan. This is the second part. On your right side bottom is the sectional elevation of one of the wall of the building, xx on the drawing you can see. So again, the first line of action, and we have been asked to find out the quantity of excavation in foundation, second class brick masonry, and in the next slide, second class in superstructure, substructure, thickness of the and the 12 thick cement plaster, plaster की quantity क्या है, all this including ceiling and the walls. So the first we should move, ऐसा जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में आगे में भी हम अभी आज नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं. So first and the foremost that should come in our mind in such a case is that ये प्लान और सेक्शन हमने धीरे धीरे समझना और पढ़ते आना चाहिए. और पहले ऐसा आगे जाने के पहले हमें सेंटर लाइन डायग्राम निकालना है, ये ध्यान में रखना चाहिए. And after the center line diagram is plotted and the center line length का एक टेबल बनाना है हमें. Okay, or you can write down on that diagram center line lengths, because we have decided to find out the quantities of various items of work like the excavation, foundation, concrete, brick masonry, etc., etc. All those we need the lengths, because quantity is equal to either length breadth into depth, और क्वांटिटी में भी इन एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और रनिंग मीटर में है तो लेंथ, ये तो हमें लगना ही है. तो सेंटर लाइन लेंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम लॉन्ग वॉल के लिए फिर वॉल के थिकनेसेस ऐड करेंगे तो आउटर आउटर मिलेगा, और शॉर्ट वॉल के लिए जो सेंटर लाइन लेंथ है उसमें से वॉल के थिकनेसेस डिडक्ट करेंगे तो हमें शॉर्ट वॉल की लेंथ मिलेगी. So in this way, this is the plan of that building, this is that sectional elevation. Then I have shown you the center line diagram of the same. Right side corner में आपको मैंने इसलिए आपके आंखों के सामने इमीडिएट आना चाहिए इसलिए ये प्लान भी बताया है, और लेफ्ट साइड में सेंटर लाइन डायग्राम है. And all the three rooms are there, living, bed and the second bedroom. Living room has got 4 meter by 3.5. ये पढ़ना आना चाहिए हमें, है ना. We are all very good in the building design drawing. हम सबने पढ़ा है. We are now into the final year. तो ये 4 मीटर बाय 3 मीटर 3.5 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल 4 मीटर डायमेंशंस इनर, एंड द वर्टिकल 3.5 मीटर्स. ठीक है. एंड द वॉल थिकनेस दैट हैज बीन गिवन टू अस इज 0.23 मीटर. ठीक है ना. ये सेक्शनल एलिवेशन यदि आपने शुरू में देखा है पहले से, तो यहाँ पे इट इज रिटन हियर that 230 millimeter thickness brick bat masonry. So 230 millimeter means 23 centimeter or 0.23 meter. So by getting now the horizontal living room का हम example लेते हैं. So 4 meter is the horizontal width or the length plus अब left side और right side के half of the wall, जैसे 23 सेंटीमीटर है तो 23 का हाफ 23/2. अब आप you can move to this center line diagram, and at the bottom for the living room you can see I have written the dimensions here. 0.23/2 plus 4 plus again on the right side half of the wall 0.23/2, and इसकी sum आती है 4.23. In this way for all the walls I have calculated.
Again, it will be my request to all of you to please go through the YouTube lectures again and again, so that you can understand you can see these drawings, etc. I will try to put some of the numericals in your notes also. So these are these found. I have found out the center line lengths. At the same time, for saving my energy and time, मेरा समय और एनर्जी बचाने के लिए आई हैव जॉइंड टू वॉल्स, जहां पे दोनों वॉल एक सरी की एक लाइन में है। जैसे लिविंग रूम और बेडरूम की मिलके लेफ्ट साइड की जो वॉल है, फॉर आई डोंट गो इंडिविजुअली, वो रूम के वॉल के अलग अलग लेंथ ने निकाला। मैंने दोनों वॉल को एक साथ करके, लिविंग और बेडरूम है ना, लेफ्ट साइड की जो लिविंग और बेड है उसकी जो लेफ्ट साइड वॉल है, आई फाउंड द टोटल लेंथ ऑफ दैट वॉल। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 0.23/2 + 4 है ना, ये यहाँ से नीचे से चालू किया। 0.23/2 दिस हाफ प्लस 4 मीटर्स प्लस 0.23, ये जैसे ये 4 मीटर इज द बेडरूम की हाइट है, 4 मीटर प्लस 0.23 बीच में जो है वॉल उसका थिकनेस 0.23, वो पूरी वॉल आने वाली है पूरी लेंथ में, इसलिए आई हैव नॉट टेकन हाफ, आई हैव टेकन फुल 0.23। फिर लिविंग रूम के वॉल की जो हाइट है जो वर्टिकल है दैट इज 3.5, दैट आई हैव टेकन, प्लस अब एंड में जो है वो एंड वॉल इज हाफ, so 0.23/2. Okay, so the center to center length is 7.96. In the same way, the top wall, that is the common wall for the bedroom number 1 and 2 at the top, that also I have found its length. This is 0.23/2 from the left, 3 meter is its horizontal length, central 0.23. So I have already explained you this you must have got. In this same way I have plotted or drawn this central line diagram and found the lengths. And as we have decided, the vertical walls I have given the long wall 1, the horizontal short wall 1, vertical long wall 2, 3, etc. Symmetrical walls जहाँ है वैसे क्या, I have prepared the table है ना, नीचे में आपको ये टेबल, this is the basic thing we should do. So 2-3 things after seeing the plan must come in our mind, that is the center line diagram, the number of the doors and windows, उसका भी हमें एक टेबल बना के रखना है, कहीं तो भी हमें doors and window डिडक्ट वगैरह करना पड़ता है इसलिए। फिर हमने excavation, as we have been given this sectional elevation plan, we know that the bed width of excavation is 1 meter, foundation width जो है, accordingly we have found for all that long wall number 1, long wall number 2, 3, 4, and all the quantities. Now how the quantities are found out, just I will give you one example and then we will move further. For excavation I will explain, the same is applicable to the foundation concrete, for the masonry, etc. So now you can see from this table, ये टेबल एक बार हमने बना लिया कि हमें बार बार ड्राइंग देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे लॉन्ग वॉल 1 है, तो ये लॉन्ग वॉल 1 जो हमने वर्टिकल वॉल थी उसका वो नंबर इज 1। वहां पे ऐसे सिमेट्रिकल यदि दो वॉल है लेफ्ट और राइट साइड में तो हमने 2 लिखा रहता था, नंबर इज 1, इट्स लेंथ इज 7.96। वी हैव सेड अर्लियर दैट इट इज ए आउट टू आउट मेथड एंड इन टू इन मेथड, ठीक है। तो 7.96 लॉन्ग वॉल को हमने ऑलवेज वी हैव कंसीडर्ड एज आउट टू आउट वॉल, यानी बाहर से बाहर, आउटर लेंथ। सो फॉर 7.96 द आउटर अगेन विल बी एडेड, जैसे फाउंडेशन की विड्थ है 1 मीटर, दिया है ना फाउंडेशन विड्थ, इट इज गिवन इन द ड्राइंग, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो 1 मीटर है, सो ऑन द, ये यदि सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड में 0.5 मीटर for the one end of the wall, and on the right side also 0.5 meter for the another end, so total is 1 meter. So we have to add one width of that item, maybe excavation, maybe foundation concrete, maybe masonry, okay, for the long wall. So 7.96 plus 1 is equal to 8.96.
8.96 is the length of LW1, लॉन्ग वॉल नंबर 1. कौन सा है हमने नॉमेनक्लेचर पहले देखा है. सो 8.96 और ये मेजरमेंट का प्रोफॉर्मा है. आइटम, number of that component, length, breadth, depth and quantity. So one number into 8.96 is the length. Breadth is 1 meter. ये हमने हमारे को स्केच में ही दिया है, ड्राइंग में दिया है. फाउंडेशन विड्थ इज 1 मीटर एंड इट्स डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. अभी हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एक्सकवेशन फॉर द फाउंडेशन. सो ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा फाउंडेशन कितना है वो हमें पता रहना चाहिए. So that is equal to 1.3 meters. That is summation of all that 400 millimeter, 200, 350, 400, 200 and 150. है ना, यहाँ पे आपके राइट साइड में दिखेगा. So all that together is the 1.3 meter is the excavation length. So length, breadth into depth into numbers of that component. जैसे LW1 वॉल एक ही है, लेकिन LW2 और LW3 दोनों वॉल की लेंथ सरी की है. लॉन्ग वॉल है लेकिन वो वर्टिकल वॉल है, इसलिए 2 नंबर लिखा हमने. लेंथ उतनी है, 1 मीटर इज द फाउंडेशन विड्थ. सो टोटल लेंथ इज इक्वल टू आउटर 4.323 प्लस 1, दैट इज 5.23. एंड अगेन द सेम लेंथ, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय नंबर. अभी सिर्फ शॉर्ट वॉल में हम आते हैं. शॉर्ट वॉल 1 एंड शॉर्ट वॉल 2. ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, जो ऊपर की सबसे टॉप में और बीच में जो है 6.96 इज इट्स लेंथ, सेंटर लाइन लेंथ. इसमें से हमने अभी विड्थ डिडक्ट किया, क्योंकि हमने बोला शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे, वी विल डिडक्ट 1 विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. दिस फॉर फाउंडेशन आइटम एक्सकवेशन विड्थ इज 1 मीटर. सो 6.96 minus 1, that is 5.96, and we'll adopt this length for calculation of the quantities. Okay, this is in short. You all must keep in mind. I will be repeating this today. In the same way, we have found out the quantity for the foundation concrete. है ना, एग्जाम में या अभी हमें सिर्फ एक्सकवेशन और मैसनरी की पूछा है, प्लास्टर की, लेकिन बाकी भी हमारे जो आइटम ऑफ वर्क है वो भी पूछ सकते हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं. तो इसलिए फाउंडेशन कंक्रीट, जो फाउंडेशन कंक्रीट की विड्थ है 1 मीटर और थिकनेस है 150 मिलीमीटर. यहाँ पे दिया है ना ड्राइंग में, PCC 148 करके दिया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट. तो फिर से वो लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2 एंड 3, 4, शॉर्ट वॉल 1, शॉर्ट वॉल 2, बोथ आर सेम, शॉर्ट वॉल 3, है ना. यू मस्ट बी ऑन योर स्क्रीन द फंडामेंटल. जैसे मैंने एक्सकवेशन का समय समझा है वैसे ही फाउंड अदर आइटम के लिए है. फिर से सेंटर लाइन लेंथ, विड्थ ऑफ दैट आइटम ऐड किया और जो लेंथ आई दैट 8.96 आई, और उसको फिर से अभी यहाँ पे डेप्थ जो है दैट इज द कंक्रीट डेप्थ, वो चेंज होगी. तो वो दैट इज 15 सेंटीमीटर और 0.15 meters. So in the same way, अभी जो brick masonry है, it has been told to us that above foundation up to plinth level, पहले तो हम plinth level तक के ना, दिख रही होगी आपके यहाँ पे PL करके लिखा है, नीचे में फाउंडेशन के ऊपर में पहले ब्रिक मैसनरी की विड्थ जो है वो 750 मिलीमीटर है, फिर 600 है, फिर 450 और 300 है, एंड करस्पॉन्डिंग डेप्थ आर 200, 350, 200 एंड 400. ठीक है, और 400 प्लस 450 यानी 300 मिलीमीटर की जो वॉल है फाउंडेशन में, उसकी हाइट है 400 प्लस 450, ग्राउंड लेवल तक के 400 और प्लिंथ लेवल तक के 450 मिलीमीटर, तो टोटल इज 850. So all these corresponding heights with corresponding width, we have divided this masonry in foundation, जिसको सब स्ट्रक्चर करके बोलते हैं, in 4 parts, है ना. 1, 2, 3, 4, चारों अलग अलग विड्थ जहाँ पे अलग अलग थिकनेसेस है, उसको हमने S1, S2, S3 और S4 करके बोला. तो ये S1 की विड्थ है 0.75 और डेप्थ है 0.2. Again the same logic, center to center length plus 1 width, that is 0.75, so that is 8.71, and 8.71 numbers etc. same, the only depth is 0.2 and the width is 0.75.
In the same way, the second part or second step of this masonry in foundation, that is 600, and the third step, that is S3, having the width of 0.4 meters. Then the next is the fourth S4, having the width of 0.3 and total depth, as I have told, zero point 0.4 plus 0.45, 0.85. एंड द सुपर स्ट्रक्चर देन, यानी जो इसके ऊपर में आपका डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पे दिखाया है. सो सुपर स्ट्रक्चर वॉल हाइट जो रूम की है अभी एक्चुअली जमीन के ऊपर में या प्लिंथ पे, वो 3 मीटर दिया है, 3000 मीटर्स, 3000 मिलीमीटर. ओके, so 3000 means 3 meters, that depth we have taken, and the width is 0.23, यहाँ पे 230 millimeter thick दिया है. So 0.23, again same process, center line plus 0.23, which is equal to 8.19, 7.96 plus 0.23, again for the long wall, and for short wall we have deducted or reduced. The process is a very mechanical. Only understand long wall add, short wall deduct. Which long wall is to be taken, you have to add up permanently, and always go clockwise for finding the length. स्ट्रक्चर का जो प्लान हम है उसमें क्लॉकवाइज आप जाइए, ताकि कोई वॉल आपकी छूटेंगी नहीं, कोई कैलकुलेशन रह नहीं जाएगा. एक एंड से चालू कीजिए and start from one end and again end at that end, जहां चालू किया है वहीं खत्म कीजिए. So all the walls can be and their lengths can be found out. अब ये जो सुपर स्ट्रक्चर की वॉल है ना, ये प्लान में आपको दिखता है, ये सुपर स्ट्रक्चर की वॉल है, इसमें कुछ दरवाजे भी है, कुछ खिड़कियां भी है, विंडोज है. तो वो मैसनरी में ये आएंगे नहीं. वी विल नॉट टेक these quantities into account because they are openings which will be occupied by the windows and the doors. तो ये हमें डिडक्ट करना है उसमें से, है ना. ये ड्राइंग में ऐसे दिखता है कि डी नंबर का जो दरवाजा है डी, वो 1 नंबर है. D1 के 2 दरवाजे है. विंडो W जो है वो 1 नंबर है, लेकिन W1 जो है वो 1 2 3 4 5 है. ठीक है. द नंबर्स आई हैव रिटन देयर साइजेस एंड देयर थिकनेस ऑफ द वॉल. तो वो हमें क्या निकलेगी, यहाँ पे 23 सेंटीमीटर वॉल है सुपर स्ट्रक्चर में, तो वी विल गेट द क्वांटिटी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैसनरी एंड द टोटल ब्रिक मैसनरी इंक्लूडिंग सब एंड द सुपर स्ट्रक्चर हम निकाल सकते. लेकिन हमें अलग अलग निकालना है, तो पूछा है तो वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंटली. लेकिन सब स्ट्रक्चर में से कभी भी ये दरवाजे के डिडक्ट नहीं होंगे. डिडक्ट कहाँ से होंगे, डिडक्ट होंगे सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर में से. तो इसका ही जो रिमेनिंग पार्ट है, प्लास्टर item and another the slab we will discuss today, and we will move on to the frame structure numerical. अभी प्लास्टर का है. we have been asked to find out the quantities of the internal plaster, अंदर का प्लास्टर. बाहर का बोला तो बाहर के डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा. तो अभी तो इंटरनल का हम देख लेते हैं. 12 नेवर गो फॉर द, ऐसे दिया है 12 mm थिक वगैरह, या कहीं 148 कंक्रीट है, ब्रिक मैसनरी इन 1:4. सो वी हैव नथिंग टू डू फॉर द क्वांटिटी कैलकुलेशन. वो तो आइटम के डिस्क्रिप्शन है. हमें तो सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ है तो लेंथ ब्रेड्थ, डेप्थ है तो डेप्थ, ऐसे निकालना है. ठीक है. चलो अभी हम चलते हैं प्लास्टर का निकाल. ये प्लान है आपके सामने. यू हैव द प्लान ऑन योर राइट साइड. 3 rooms are there, living bedroom and the bedroom number 2, and all are to be plastered from inside and also to the ceiling. ऐसा उन्होंने बोला है कि सीलिंग को भी प्लास्टर का निकालिए क्वांटिटी. सो अभी यहाँ पे आपको अलग अलग रूम लेना है, कंसीडर करना है ना. यहाँ पे कोई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं चलेगी, एक्चुअल डायमेंशन आपको लेना है. सो नाउ द फ्रंट रूम जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम में आपके 4 walls are there. Okay, the horizontal 2 walls are of the similar dimension, that is 4 meters length, and also the vertical 2 walls are 3.5 meters of their length. Okay, vertical walls. So इनका अंदर से हमें प्लास्टर करना है. So therefore for the front room 2 walls of 4 meters multiplied by
इसकी हाइट 3 मीटर करके दिया है, 3 meters is the height of that wall. We always find the cement plaster in square meter. The unit of the cement plaster is always in square meter. प्लास्टर हम कभी क्यूबिक मीटर में पेमेंट करते नहीं है, ना एस्टिमेट में लेते हैं, ये ध्यान में रखना। वी गो फॉर द एक्सकवेशन, फाउंडेशन, मैसनरी टू लार्जर थिकनेस मैसनरी, है ना। हाफ ब्रिक है तो जनरली स्क्वायर मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं, लेकिन अभी तो हम क्यूबिक मीटर में हमने निकाला है। लेकिन प्लास्टर का जो है वो वी फाइंड इन स्क्वायर मीटर। व्हाट वी डू इन रेट एनालिसिस, कैसे क्यूबिक से स्क्वायर करते हैं वो हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन ये प्लास्टर का हम स्क्वायर मीटर में निकाल रहे हैं। तो 2 numbers ऑफ द वॉल्स ऑफ द फ्रंट रूम विच हैज गॉट द लेंथ ऑफ 4 मीटर, its height is 3 meters, so therefore 4 into 3 into 2 is 24. In the same way, another wall which is 3.5 meters, its height is 3 meter, and there are 2 walls, so 21 square meter. In the same way, all that back room, bedroom number 1, back room, another bedroom which has got, the first bedroom has got 3 by 4 meters, so 3 meter multiplied by 3 meter height multiplied by 2 इज द, और 2 वॉल है इसलिए 2 साल के 2 वॉल के लिए प्लास्टर इतना होगा स्क्वायर मीटर में। अगेन फॉर द अनदर 2 वॉल्स 4 मीटर हाइट के है, तो उसके लिए निकाला। वैसे ही बैक रूम का भी, दूसरी रूम जो है बेडरूम ऑन द राइट साइड ऑफ 3.5 by 4 meters, फॉर दैट ऑल्सो वी हैव वर्कड आउट। ओके, नाउ the remaining part we have been asked that the plastering is being done to the ceiling also. सीलिंग को भी प्लास्टर किया है। सीलिंग यानी आप सबको मालूम है जो स्लैब का बॉटम या इनर पार्ट रहता है, या रूम का जो टॉप मोस्ट पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द सीलिंग, है ना। बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं फॉल्स सीलिंग, या वहां पे हम पीओपी करते हैं कभी सीलिंग में, ठीक है। तो दैट क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट। अगेन वी हैव 3 रूम्स। अभी सीलिंग में तो सिंपल है, उसका जो प्लान एरिया है वही सीलिंग का एरिया रहेगा। तो फ्रंट रूम के लिए 1 नंबर, सीलिंग तो एक ही रहता है किसी रूम को। 4 मीटर इज विड्थ, 3.5 मीटर इज इट्स लेंथ, width and the length, or horizontal and vertical length you can say. So 4 by 3.5 is the living room, so it is 12. 4 by, it is 14. Then the back room or bedroom number 1 on the left is 3 by 4, so 12, and the bedroom number 2 on the right side is 3.5 by 4, so it is 14. So overall plaster quantity इसके सबकी टोटल किया तो दैट इज 172 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहां तक तो हो गया। लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे विंडोज है और डोर्स भी है, ठीक है, तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जुड़ाई में है, मैसनरी में है, वी डिडक्ट 100% ऑफ द ओपनिंग्स ऑफ द डोर्स एंड द विंडोज। ओके, फॉर द मैसनरी, we deduct 100%. We have deducted earlier in our masonry item, but for plaster we don't do like that, क्योंकि आपने आपके घर में आप देखते हैं प्लास्टर जब आपके दीवालों का होता है, वॉल का होता है, तो जब आपकी विंडोज वगैरह रहती है तो विंडोज में भी अंदर के साइड से बिटवीन दैट 2 वॉल्स एंड लीविंग द फ्रेम ऑफ द विंडो, दरवाजा या खिड़की की जो फ्रेम रहती है या पैनल रहते हैं उसको छोड़ा के भी उसको प्लास्टर रहता है ना, जिसको पट्टा प्लास्टर करके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक आधे मैसन से आप बात कीजिए तो आपको ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आर दोज जो लेंथ वाइज उसकी क्वांटिटी है, वी डिडक्ट 50% ऑफ द ओपनिंग। ऐसा एक्सेप्टेड है कि ओपनिंग जो है टोटल उसका 50% हम प्लास्टर से रिड्यूस करते हैं टू गेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट प्लास्टर क्वांटिटी। जैसे अभी हमारी प्लास्टर क्वांटिटी जो है वो 172 और से 172 क्यूबिक स्क्वायर मीटर आई है। सो देयर आर, एज वी हैव सीन, द डी नंबर का जो दरवाजा है डी वो 1 है, D1 के 2 है, विंडो W जो है वो 1 है, and W1 is 5. Their sizes are there. Okay, so only thing is here the measurements are in square meter, nor in cubic meter.
So 1 into 1.2 into 2.1, which is equal to 2.51. So all dimensions are worked out in square meter. ओपनिंग हमने मैसनरी के लिए क्यूबिक मीटर में निकाला था, और ये जो डिडक्शन ये थी सब टोटल आई 17.61. As we have decided that 50% are to be reduced, not 100%, क्योंकि कुछ प्लास्टर वो कॉन्ट्रैक्टर वो मैसन को करना पड़ता है अंदर से, तो उसका पेमेंट तो होना ही चाहिए ना, या उसकी एस्टिमेट में प्रोविजन रहना चाहिए. So we reduce 50%. So 17.61 minus 8.81, half of 17.61. So total is 172 minus 8.81. So this is the how the plaster quantity is calculated. Now there is another item called as the मुरुम बोल्डर फिलिंग. ऐसा भी होता है एग्जाम में पूछते हैं एक बार, बहुत बार, कि अंदर में बिलो द फ्लोरिंग जो आपका रहता है यहाँ पे जैसे बताया है बिटवीन प्लिंथ लेवल एंड द ग्राउंड लेवल, इसके बीच में जो 450 है, तो सम पार्ट यहाँ पे हमने वी हैव टेकन 25 सेंटीमीटर्स, दो इट इज नॉट गिवन, नहीं दिया है तो भी हमने एक जस्ट हमें समझने के लिए एक आइटम ऐड कर लिया. सो बिकॉज दे मे आस्क आइदर और, सो मुरुम बोल्डर फिलिंग, और वैसे भी आपको प्रैक्टिकल इसमें काम आएगा. सो अगेन फॉर द ऑल दोज रूम्स, अभी यहाँ पे मुरुम बोल्डर फिलिंग की क्वांटिटी निकालते हैं, तो वो दैट क्वांटिटी is to be found out because that quantity is filled in these rooms between the 300 millimeter walls, that is the substructure wall, not 23. तो इसलिए we deduct some part of that projection. And please look into the diagram. 23 centimeter wall and below is 300 millimeter wall, यानी 23 एंड 30 ऐसा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर्स बाय 2. तो ये आधा इधर प्रोजेक्शन आता है, डीपीसी यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा होगा, और उतना वो मुरुम बोल्डर फिलिंग से कम होता है. सो देयरफॉर दैट लेंथ, रिवाइज लेंथ यू कैन सी ऑन दिस टेबल. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ड्राइंग्स, नहीं तो मैं एक आधे बार और आगे में समझा दूंगा कि मुरुम बोल्डर फिलिंग में हम एग्जैक्टली इनर डायमेंशन नहीं लेते, क्योंकि रूम में हम फील करते हैं फ्लोर के नीचे में, लेकिन थोड़ा जो प्रोजेक्शन है प्लिंथ लेवल का, क्योंकि प्लिंथ विड्थ ऑफ द वॉल इज मोर एज कंपेयर टू द इनर वॉल्स ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर. सो दैट प्रोजेक्शन, half of the projection we reduce from the total length. तो 4 मीटर में 3.5 all those inner dimensions of the room are reduced with 0.3, that is the width of that substructure wall, minus 0.23, that is superstructure wall, divided by 2. तो वो 0.04 आता है, उतना रिड्यूस किया और हमने रिवाइज लेंथ निकाला. एंड अगेन फिर तो बहुत इजी है, लेंथ ब्रेड्थ, फ्रंट रूम बेडरूम 1 बेडरूम 2, लेंथ ब्रेड्थ मालूम है हमको. मुरुम बोल्डर फिलिंग कहाँ होता है, ये प्लिंथ लेवल के नीचे होता है. इट इज फॉर गिविंग द स्टेबिलिटी टू द फ्लोरिंग. फ्लोरिंग नीचे बैठना नहीं चाहिए, इसलिए उसको मुरुम बोल्डर फिलिंग से करते हैं. आपने भी देखा होगा, बहुत सारे घरों के काम देखा होगा, तो वहां पे फ्लोरिंग के नीचे में हम माटी मुरुम और बोल्डर का फिलिंग करते, उसको कॉम्पैक्ट करते, वाटरिंग. So that is called, and then its depth is taken as 0.25, and then length breadth into depth and the numbers, the total is the quantity. Sometimes it is asked. So therefore we should be prepared for that. Now the last and the final is the RCC slab. हमें दिया है somewhere in drawing that RCC 1 to 4 for the roof slab, और उसमें quantity of steel on approximate basis. रिइंफोर्समेंट डिटेल्स तो नहीं दिया, लेकिन रिइंफोर्समेंट डिटेल्स दिया है, तो कैसे सॉल्व करना हम आगे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बेसिस पे निकालते हैं. स्लैब है अभी, जैसे हमने सीलिंग का प्लास्टर निकाला वैसे ही स्लैब का है. सिर्फ स्लैब कैसी है, इट विल प्रोजेक्ट ऑन ऑल वॉल्स, आउटर वॉल्स, सभी आउटर वॉल पे पूरी स्लैब आती है, हाफ नहीं आती, या प्लास्टर जैसा अंदर नहीं रहती. तो इसलिए हमें पूरी लेंथ कंसीडर करना है. कैसे किया है वो यहाँ देखते हैं हम. जैसे मेरे फ्रंट रूम है,
4 मीटर बाय 3.5। सो 4 मीटर को लेफ्ट साइड में 23 सेंटीमीटर के वॉल के ऊपर में स्लैब आना है, राइट साइड में भी 23 सेंटीमीटर के वॉल के ऊपर में आना है। वही लिविंग रूम में जो 3.5 मीटर की जो वर्टिकल लेंथ है, वो 3.5 में नीचे में जो है एट द बॉटम of that plan, the whole wall will be covered by the slab, but for the central wall जिसमें D1 दरवाजा है between living and the bedroom, तो इसमें half of the wall we will consider for this living room, half of that wall for the ceiling, for the slab, and the remaining half we will consider into the bedroom. ठीक है, the same procedure will apply for the bedroom where the common wall is there. जहां पे कॉमन वॉल फॉर द बोथ रूम इज देयर, वी कंसिडर हाफ इन वन रूम एंड हाफ इन अनदर रूम फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, बिकॉज स्लैब में भी कहीं कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, ऑल द क्वांटिटी ऑफ स्लैब कॉन्क्रीट शुड बी देयर। सो द लेंथ 4 meters is inner length, 4 plus 0.23, that is one side, एक साइड जो लेफ्ट साइड, सॉरी वेरी सॉरी, ऑन द लेफ्ट साइड, so 0.23, that is the wall thickness. On the right side also 0.23, है ना, पूरी वॉल आएगी, ऑल द टोटल वॉल, सो 0.23 multiplied by 2, so 4.46. now the vertical wall 3.5 meters, so 3.5 plus on one side the whole wall will come 0.23, and the central wall common between living and bedroom, half will be covered in this room slab. कास्ट करते वक्त हम पूरी स्लैब एक बार डालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। सो देयरफॉर 3.5 प्लस 0.23 वन साइड एंड 23/2, सो 3.845। स्लैब थिकनेस हैज बीन गिवन एज द 0.15, है ना, क्रॉस सेक्शन में आप देख लीजिए जो सेक्शनल एलिवेशन दिया है, देयर स्लैब थिकनेस इज मेंशन्ड एज 0.15। तो वैसे ही हमें ये प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान में रखना कि ड्राइंग देखने के बाद में ऑल द डायमेंशंस धीरे धीरे हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो ये ऐसे फ्रंट रूम का निकाला, बैक रूम का भी ऐसे ही निकाला। अगेन 3 मीटर बाय 4 मीटर है इनर डायमेंशन, तो 3 मीटर में लेफ्ट साइड वॉल पूरी आएगी, लेकिन राइट साइड जो है बिटवीन टू बेडरूम वन कॉमन वॉल इज देयर, तो इसका आधा इधर आएगा आधा उधर आएगा, तो 0.23 प्लस 3 प्लस 0.23/2। ओके, और वर्टिकल वॉल, इसमें सेंट्रल वॉल जो हमने लिविंग और बेड की है उसकी कॉमन वॉल का आधा लेंगे, और जो अपर वॉल है उसका पूरा लेंगे। सो 0.23 प्लस 4 प्लस 23/2, 4.32345। अगेन लेंथ ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, अगेन सेम इज फॉर द बेडरूम नंबर 2। ओके, ये टोटल स्लैब की क्वांटिटी आई 7.32 क्यूबिक मीटर। टोटल स्लैब क्वांटिटी दैट वी हैव कैलकुलेटेड एट 7.32। यदि हमें एग्जाम में पूछते हैं कि कैलकुलेट द स्टील ऑन परसेंटेज बेसिस, देन दैट एज्यूम दैट 1% ऑफ द स्लैब क्वांटिटी इज द रीइंफोर्समेंट, जनरली आता है 1%, so 1% of the slab quantity, so 1% of 7.32, that is 0.732 cubic meter। जनरली स्टील की जो डेंसिटी रहती है दैट इज 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। सो देयरफॉर 78.5 इनटू दिस वॉल्यूम विल गिव यू 5.75 क्विंटल इन वेट, है ना। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल गिव यू द मास और द वेट। So this is in short how to solve it. Now friends, we will move on to within the remaining time we will move to that frame structure जो बचा हुआ है उसको अगले इसमें हम देखते हैं। So this is a typical drawing given we have to calculate the quantities of item of a RCC frame structure building, estimate the quantities of item of work for earthwork in excavation, है ना, आरसीसी वर्क इन कॉलम एंड कॉलम फुटिंग अप टू ग्राउंड लेवल, आरसीसी वर्क, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, हम और भी ज्यादा के आइटम भी हम इसी में समझ लेते हैं। वो कुछ स्लैब पूछा होगा, नहीं भी पूछा होगा तो स्लैब क्वांटिटी निकालेंगे, मुरुम बोल्डर फिलिंग निकालेंगे, जो भी है वी विल कवर मैक्सिमम। यू कैन अगेन सी
the plan, the elevation, the section, and the section of the column is also given on the right side. ठीक है, ये सब हमें देखना है, एग्जाम में भी देते हैं, तो we have to find out according to this. This is the section and the sectional elevation is given. Then the plan of the building is also given. ठीक है, ये पहले में दिया था, मैंने larger scale में बताया. So there you can see there are 4 rooms are there. Hall is there. Room 1, room 2, room 3. Hall has got the inner dimensions of 3.5 by 8.46. Room 1 has got the inner dimensions of 3 meter by 2.5. ये देखो, ये 3 मीटर यहाँ दिया है एंड द 2.5 इसकी हाइट है रूम नंबर 1 की. रूम नंबर 2 की है 3 मीटर बाय 3 मीटर. रूम नंबर 3 इज 3 बाय 2.5. है ना, ये ड्राइंग एक बार देख लिया कि ये चीजें हमारे दिमाग में आना चाहिए. और उसके बाद में उन्होंने वॉल थिकनेस यहाँ पे दिया है. इट इज रिटन हियर दैट द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 23 सेंटीमीटर, समवेयर इट इज मेंशन्ड. ओके, wall thickness is given, column sizes are given, column footing and all the excavation details are given, all the widths in plan of the column. जैसे ये यहाँ पे बताया कि 1.5 मीटर by 1.5 मीटर, 1 मीटर by 1 मीटर, etc. all those details are given and the wall thicknesses etc. all are given. From that we will move further. जैसा ये ड्राइंग मैंने आपको राइट साइड में बताया, पहली चीज क्या करना है, हमें फिर से सेंटर लाइन डायग्राम निकालना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. unless and until we draw center line diagram we cannot move further. So the 4 rooms are there. The hall 3.5 by 8.46, room number 1 3 by 2.5, room number 2 3 by 3, and the room number 3 meter by 2.5. always the first dimension shows horizontal and the second dimension shows vertical. जैसे हम सामने से देखते हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके बोलते हैं. वो तो 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि जो हमारे वर्टिकल वॉल है उसको हम लॉन्ग वॉल करके बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल वॉल है उसको शॉर्ट वॉल करके बोलेंगे. ठीक है, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी जे सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, all the crossings or all the cross points of the walls are given some references A, B, C, D, etc. So it will be more explanatory for all of you. So between A and B, the center line length we have to find out. A, B की center line length है ना, ये जो लेफ्ट साइड वॉल, लेफ्ट साइड ये एक एंड से हम चालू करते हैं. हमने डिसाइड किया है कि ए से चालू करेंगे तो पूरा घूम फिर के क्लॉकवाइज घूमेंगे एंड वी विल अगेन कम टू ए टू फाइंड आउट दी ऑल द सेंटर लाइन लेंथ्स पहले एंड देन वी विल, एक बार सेंटर लाइन लेंथ निकाला कि बाकी आगे के कैलकुलेशन बहुत इजी है, दे आर ओनली मैकेनिकल. सो नाउ द लेंथ ए बी इज इक्वल टू इनर डायमेंशन उसके तो दिए है 8.46. इट इज रिटन इनटू द स्केच. The length of that vertical wall is 8.46. So on one side half of the wall and on another side half of the wall. Wall thickness is given as 23 centimeter. So 0.23 by 2, that is half of the wall, plus 8.46 plus on another side half of the wall 0.23 by 2. So total is 8.69. ठीक है, दिस इज लॉन्ग वॉल नंबर 1. इसी वक्त हमने इसका नामकरण कर दिया कि भाई ये लॉन्ग वॉल नंबर 1 है क्योंकि यहां से हमने शुरुआत किया है. ठीक है, फिर हम अभी मुड़ते हैं राइट साइड में ना. अभी आखिरी के 10 मिनट बचे एंड समबडी इज देयर, सो आई डोंट वांट दैट यू ऑल शुड बी डिस्टर्ब्ड एंड माई सेल्फ ऑल्सो डिसकंटिन्यू द टीचिंग. नाउ द हॉरिजॉन्टल वॉल, वॉल बी टू सी है ना, इसमें जे करके आया है बीच में पॉइंट, लेकिन ये ऐसे ही अभी जरा रेफरेंस के लिए दिया है मैंने. बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकॉज दिस इज द टोटल लेंथ, टोटल वॉल बी सी. सब ऑन टॉप राइट, सबसे ऊपर में की जो वॉल है दैट इज बी सी. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉल एंड द रूम नंबर 1, दैट टॉप वॉल प्लीज रेफर टू ऑन योर स्क्रीन. अब इसमें क्या आएगा,
The again on the left side, half of the wall, 0.23 by 2. Then the horizontal length of the hall, that is 3.5 meters, so 3.5 plus central wall है जो जे आई वाली वॉल है, भले ही उसमें दरवाजा है, बट जे आई जो दिखाया है दैट इज वन वॉल. ओके, सो जे आई वॉल का पूरी वॉल आएगी इसमें लेंथ में इन दिस, सो 0.23. देन द रूम नंबर 1 का हॉरिजॉन्टल लेंथ दैट इज 3 मीटर्स प्लस जीरो राइट साइड के हाफ वॉल 0.23 by 2. Okay, I think that all of you must be getting on your screen, and at the top of this central line diagram I have shown all those dimensions. और इन सब की टोटल करने के बाद में आएगा 6.96. एक बार देख ही लेते हैं कौन है, तो अभी इतना लेट आया है तो. So 6.96 is the summation of all that length, the horizontal length of the two rooms plus half of the wall on the left, half of the wall. Hello, hello. Yes sir. काही प्रॉब्लम है? No sir. हाँ ठीक है, किसी का आवाज आया बीच. So the length is 6.96. Now friends, that AB wall is very symmetrical or similar to that CF wall, है ना. ये जो right side wall है, as the building is very rectangular, so there are all the walls are almost of the same length. सिर्फ बीच में की partition wall may be of different, वो हम देखते हैं. For the calculation purpose we have to make it very easy. So therefore AB is equal to CF, and which is also equal to that JG or GJ central wall, है ना. लेफ्ट साइड लॉन्ग वॉल, सेंट्रल लॉन्ग वॉल एंड द राइट साइड लॉन्ग वॉल, हाँ वर्टिकल वॉल. लॉन्ग वॉल हम वर्टिकल वॉल को बोलते हैं. तीनों लेफ्ट ऑफ द बिल्डिंग, central of the building and right of the building, all are symmetrical. So we have given them LW1, LW2 and LW3, and they all will have same length, that is 8.69 that we have found out earlier. पहले हमने LW1 का निकाला, वही लेंथ रहेगी. रिपीटेशन करने में कोई मतलब ही नहीं है, आंखों से दिखता है अपने को. ठीक है, तो अभी चलो हम राइट क्लॉकवाइज घूमते घूमते एफ पॉइंट पे आ गए. फिर से एफ से ए में जाते हैं, तो एफ से ए में जाते वक्त हमारे ध्यान में आता है कि इट इज ऑल्सो ए एफ, और एफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, है ना. Then again no necessity to calculate its length once again. We have already calculated 6.96 as the length of BC, तो उसको लिख डालते हैं यहाँ पे. Now the question arises of the in between partition wall, that is ID and HE. बाकी तो सब कवर हो गया है अभी. All the three vertical walls, the remaining two balance horizontal walls. Now the only two partition walls, that is ID and HE, they both will have the same length, है ना. दोनों जो है, जो सेंट्रल रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 को कॉमन वॉल, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 को कॉमन वॉल जो पार्टीशन वॉल है, वो उसकी लेंथ सरी की है. दैट लेंथ विल बी अगेन from left we will start half of that central wall, that is 0.23 by 2 plus the length or width of the room, that is 3 meters, plus right side 0.23 by 2, so that is 3.23. Same is applicable for the HE also. We have given them the numbers, the names, जैसे SW1 और SW4 करके हमने नीचे के वॉल को दिया, तो इसको SW2 और SW3 करके दिया हमने, है ना. So in this way friends, what we have done, we have calculated the center line dimensions, है ना. आपको कुछ नहीं करना है, स्कीमेटिक पेन से ही निकालना है, पेन या पेंसिल से. सिर्फ आपको you go through all those details and find out the lengths and prepare the table. ये जैसे मैंने नीचे में किया है, walls, numbers and their lengths. LW1 is equal to LW2 is equal to LW3, तीनों सेम है, 3 नंबर्स है, इसकी लेंथ है 8.69 वर्टिकल वॉल्स.
SW1 is equal to SW4, two walls, two numbers, 6.96 is their horizontal length, and then again the two partition walls SW2 and SW3, they are also similar, symmetrical, two numbers, their length is 3.23. Now it is a framed structure. Okay, so it has got columns. तो हमें ये ड्राइंग के ऊपर से कितने कॉलम गिनना है, और वो कॉलम आपके बीडीडी में या इसमें कैसे बताए जाते हैं वो आपको मालूम है। ये ऐसे डार्क से बताया, जैसे लेफ्ट साइड से हम चालू करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो पॉइंट नंबर ए है। सो ए पे एक कॉलम है, वी मूव फर्दर, सो और वो विंडो के पास में एक कॉलम है। सो 1 2 आप गिनते जाइए, 3 4 5 6 7 8 9, और फिर सेंटर में आते हैं 10 11 एंड 12। ओके, प्लीज कंफर्म, यू योरसेल्फ कंफर्म फ्रॉम द ड्राइंग दैट हाउ मच कॉलम्स आर देयर। टू मी इट इज 12 नंबर्स। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, बाएं से चालू करते हैं, 1 2, है ना, मेरा कर्सर यदि आपको दिखता होगा तो 1, दिस इज द सेकंड 2, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ। कॉलम कॉलम करके लिखा है सी सी, वहां पे हर कॉलम के पोजीशन में उन्होंने सी लिखा है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 कॉलम्स है ना। समबडीज माइक इज देयर वर्किंग, उसको आप म्यूट कर दीजिए, और वो आवाज आ रही है इधर, दैट इज नॉट गुड। सो दिस इज ऑल। अभी यहाँ पे एक्सकवेशन किस चीज को है? एक्सकवेशन इज ओनली फॉर द कॉलम एंड नॉट फॉर एनी अदर। कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है। सो द एक्सकवेशन इज ओनली फॉर कॉलम, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सकवेशन क्वांटिटी, वो हम समझ लेते हैं और फिर आज वहां पे रुक जाते हैं। ये अभी हो गया हमारा सेंट्रल लाइन डायग्राम। वी हैव रिटन ऑल द डिटेल्स ऑफ द वॉल, we have calculated the center line lengths of the wall, and at the same time we have noted how much columns are there. 12 columns are there. Okay, that is written into the this thing. Now we will move further to the first item of work, that is the earthwork in excavation in foundation or footing, है ना? Because we have been told to find the excavation in foundation, and here as the structure being framed structure, तो सिर्फ हम कॉलम के लिए ही खोदेंगे, एक्सकवेट करेंगे। पूरा के पूरा स्ट्रक्चर के लिए, वॉल के लिए एक्सकवेट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। सो वी हैव 12 नंबर्स ऑफ द कॉलम्स एंड द विड्थ ऑफ द कॉलम इज 1.5। इट हैज बीन गिवन इनटू द प्लान। इसका जो प्लान है, प्लान में उन्होंने दिया है कि विड्थ एंड द लेंथ और द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द कॉलम आर 1.5 meters. And it has also been given into the drawing on your right side the depth of footing below ground level. ये हैच किया है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे खोदाई जो है, डेप्थ है, वो है 1.5 मीटर। ओके, सो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज 1.5 मीटर। सो 12 numbers of the column, length is 1.5 meter, breadth is 1.5 meter, as well as depth is 1.5 meter. So total quantity is multiplication of 12 into 1.5 into 1.5 into 1.5 is 40.5 cubic meter. ठीक है, और इसके ही ऊपर से ये फाउंडेशन कंक्रीट भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। It has been given that PCC 148, again the size of the foundation concrete is again the same, for which is taken for the excavation, that is 1.5 by 1.5. Only thickness is, it is given as 10 centimeters. It is given, it looks थोड़ा फेंट दिखता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर का 148 दिया है नीचे में, जिसको हमारे कॉमन लैंग्वेज में लेवलिंग कोर्स भी बोलते हैं, पीसीसी करके बोलेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर 12 कॉलम्स 1.5 by 1.5 is a plan area of the footing, चौकोनी 1.5 by 1.5, and उसका thickness है 0.1. So multiplication of this will give you 2.7 cubic meter is the concrete in foundation. ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं,
बाकी ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द कॉलम, quantities of the masonry we will, and the slab and the plaster etc, backfilling वगैरह भी बताया इसमें, that we will discuss in our next lecture. Okay.